थिंग्स वर गोइंग क्वाइट वेल। एक अच्छा करियर ऑप्शन था, चीज़ें अच्छी चल रही थी, ग्रोथ भी थी, बट इट्स नॉट फॉर मी। इनिशियली अगर मैं यहीं से स्टार्ट करता सर तो आज मैं एवीपी तक आई गेस होता। I was also very average student, right, till 12th standard. एट दैट टाइम आई वॉज लाइक मेरे को अपना होम टाउन में ही करना है। कैसे मैंने अपना ड्रीम फॉलो किया। Ultimately, I work for the company where you want to work for. एंड जैसे जैसे मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किए तो मेरे को लगा कि हाँ, बिकॉज जो फीडबैक आ रहे थे कि टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। Hello everyone and welcome to this podcast. I am Manoj Goel. I am co-founder of the Wall Street School. And in today's podcast, we have our special guest and my distinguished student, Ankit Malik. He is my student in the Financial Modeling and Valuation batch. तो इस पॉडकास्ट में हम लोग इनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं और बेसिक पर्पस क्या है कि वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे अंकित ने अपने करियर का ट्रांजिशन किया फ्रॉम हिज रिटेल बैंकिंग प्रोफाइल टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड डिस्पाइट हैविंग ऑलमोस्ट 2 to 3 years ऑफ द करियर ब्रेक। वेलकम करते हैं अंकित को। अंकित, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताएं, कि आपकी अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मे बी यू कैन स्टार्ट विद योर एकेडमिक पार्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर। मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी बेहतर रहा था। तो इनिशियली लाइक till 10th I was a bright student, 10 out of 10 CGPA. Then like I never thought of कि career transition would be a difficult phase because I was like आप रिटेल ब्रांच बैंकिंग में काम करें या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, सो यू हैव टू वर्क एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट नहीं, इन एक्चुअल थिंग्स आर टोटली डिफरेंट. So initially when I graduated from University of Delhi in 2017, I was a commerce graduate at that time, right? So at that time BCom, right? And at that time I was planning of going in the competitive field. I started preparing for competitive exams. I never thought of at that time to enter in the corporate world, to be very honest. So post that I was preparing for competitive exams and then I enrolled myself in the Master of Commerce through the open learning mode. From which university? From IGNOU. IGNOU. Right. And after that I thought like, okay, I will prepare simultaneously, but let's move somewhere. So at that time back of the mind I was like मेरे को अपना होम टाउन में ही करना है. सो आई स्टार्टेड विद दी अपॉर्चुनिटीज़ कि what are the available opportunities in my hometown. So there are retail bankings, retail branch bankings only. So I wanted to enter in a professional way. So I went for a PG diploma in relationship banking. So किस बैंक में काम किया आपने? I did this from Mahe, Manipal Academy of Higher Education, and then I started working at SDFC Bank in retail branch banking segment. Okay, डिप्लोमा करके आपने HDFC बैंक से अपना करियर स्टार्ट। Right. Okay. In liabilities vertical, I started there at SDFC Bank. ठीक है। So during that time, things were going quite well. एक अच्छा करियर ऑप्शन था, चीज़ें अच्छी चल रही थी, ग्रोथ भी थी, राइट, बट इट्स नॉट फॉर मी. लाइक सबका अपना एक स्पेसिफिक डोमेन होता है. पीपल ग्रो कर रहे थे, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे थे. मेरा भी कंपनसेशन ओके था इनिशियल लेवल पे, राइट, बट मेरे को ट्रांजिशन चाहिए था. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स. I started preparing for other courses and certification programs from IIM Bangalore or IIT Roorkee. तो क्यों कर रहे थे ये कोर्सेज? किस डोमेन में आपको जाना था? मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहीं ना कहीं मेरे को स्ट्राइक कर रहा था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आना है, बट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इट्स अ वास्ट area, right? So I was not sure in investment and banking where do I want to see myself, be it in M&A or LBO, or just want to enter investment banking but not sure of the domain. So I started enrolling in different courses. I did random courses from open learning sources. At that time I got to know about the Great Lakes program. So I enrolled myself in that program, executive PGP. It's for working professionals. Which year? In 2023. तो आपने बीकॉम किया था 2017 में. बीकॉम 2017, Right. एमकॉम किया 2019. और
2019 के बाद आपने पीजी डिप्लोमा करके बैंकिंग में जॉब की। राइट सर। फिर 23 में आपने सोचा करियर स्विच करने का। राइट। ओके। So in that course, it's for working professionals, and I get at that time I got an edge to learn some different subjects. But to be very honest, that is where I realized that I want some technical skills to enter in this domain. It's तो ग्रेट लेक्स में आपने क्या कौन सा कोर्स किया था? executive PGP in management. Exactly, focus of course क्या था मतलब? It's not a specialized subject specialized course. It's a common like we say MBA. It's kind sort of an MBA. If I pursue another year, then it would be a specialized one. The specialization path would be there. Okay, okay. Right? ठीक है। सो मैंने देखा कि स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए, बिकॉज मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर करना स्टार्ट किया। एंड जैसे जैसे मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किए तो मेरे को लगा कि हाँ, बिकॉज जो फीडबैक आ रहे थे कि टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। टेक्निकल जैसे कोर फाइनेंस से रिलेटेड? Core finance, I was aware of the theoretical part, but whenever some interviewer asked me that how would you build a model, what are the three statement linkages, how would you do this, do that, so these technical aspects I was not aware of. So मैंने सर्च किया कि let's see how I can do that. Okay, so at that time I got to know about the Wall Street School. To be very honest, the name itself is very lucrative for me. The Wall Street, it's luxurious feeling, right? वॉल स्ट्रीट से बिल्कुल कनेक्ट करता है। कनेक्ट करता हूँ, लाइक मेरे को लगा कि हाँ कुछ बहुत बेटर होगा, एंड वही हुआ इन लास्ट, राइट। तो मैंने स्टार्ट की मेरी रिसर्च, मैं यहाँ पर आया, मैम से मिला, बट मैंने इनको पहले ही बोला था कि आई डोंट वांट एनी दोज थिंग्स कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मेरे को आप फाउंडर से मिलवा दीजिए प्लीज़। मुझे याद है आप मुझसे ही मिले थे जब आए थे आप। राइट। सो स्टेशन के लिए तो काउंसलर केम टू माय केबिन कि सर देयर इज अ स्टूडेंट फ्रॉम सोनीपत से आए हैं वो काफ़ी स्पेशली, और वो आपसे ही मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मेरी कुछ कॉल्स थी लाइंड अप, बट मैंने कहा ठीक है आप मुझसे मिलवाइए उनको। राइट। आई केम प्रिपेयर्ड। मैंने अपनी रिसर्च, अपना इंटेलिजेंस किया पहले कि मेरे को सिर्फ फाउंडर से ही बात करनी है। आप लोग कुछ भी बोल देते हो, देन थिंग्स वॉन्ट गो इन दैट वे, सो आप प्लीज़ मेरे को हिमांशु सर से मिलवा दीजिए। एंड शी सेड कि हिमांशु सर अभी अवेलेबल नहीं है, मनोज सर हैं। सो आई सेड ओके, आई वांट टू मीट हिम। एंड देन मेरी आपसे पहली इंटरेक्शन थी, एंड अभिषेक सर ऑब्वियसली, राइट। सो वहाँ से चीज़ें पूरी बदली, आप लोगों ने जो बोला, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो इस कोर्स में सिखाया गया फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशंस में, इट्स फार मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब जो जॉब में रिक्वायर्ड रहता है उससे कहीं ज़्यादा। राइट। इनिशियल लेवल पे सर इन दैट स्पेस नो वन गिव्स यू फुल फ्लैज मॉडल बिल्डिंग, राइट, कि आपको स्टार्टिंग से फुल फ्लैज मॉडल बनाना है। नो, आपको या तो कोर रिसर्च पे काम करना है, या फिर आपको असिस्ट करना है फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को। सो हमारा पार्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जर्नी में जो रहता है, यहाँ पर जो सीखा वो मोर देन सफिशिएंट था। हाँ, मुझे याद है कि जब आप आए थे तो आपने बोला कि मेरा ऐसे रिटेल बैंकिंग में एक्सपीरियंस है, और एमकॉम आपने काफ़ी टाइम पहले किया था 2019 में। ये बात है आई थिंक अगस्त 24 की, नहीं अप्रैल 24 की, अप्रैल 24 में आए थे। तो मेरे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था, बिकॉज आई एम टेकिंग अ कैंडिडेट जिनका पैशन है इन्वेस्टमेंट बैंक, कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है, राइट। और डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका एक करियर ब्रेक भी था, क्योंकि 5 साल से जो आपका एक्सपीरियंस था वो काफ़ी इतना रेलिवेंट नहीं था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, राइट। बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जो आपका पैशन था, पैशन टू फॉलो योर ड्रीम, वो पैशन मुझे लगा कि यार ये लड़का कुछ कर सकता है, वो पैशन को देख के। तो मैंने कहा नहीं, अगर इनमें वो जज्बा है करने का तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प दिस गाय। आपने और अभिषेक सर ने उस टाइम पे लाइक वो कन्वर्जेशन 10 मिनट की होनी थी आई गेस, बट आई रिमेंबर इट्स अराउंड 50 मिनट्स और अराउंड 1 आवर, राइट। सो आई वाज लाइक है यहाँ पर कुछ है, एक अपनापन फील हुआ मेरे को। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि सर मेरे को आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं यहाँ आने से पहले खुद को प्रिपेयर करके आऊँगा। एंड देन आई एम लाइक
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने दिन रात पढ़ा, नहीं, बट वर्किंग जो मेरा टाइम था उसके अलावा मैंने काफ़ी टाइम दिया खुद को बिफोर एंटरिंग दिस डोमेन। लाइक यहाँ आने से पहले मैंने खुद को प्रिपेयर किया, सर्टिफिकेशंस मैं कर ही रहा था, तो जैसे यहाँ पे आया वो सारा जो मैंने थ्योरी पढ़ा था वो सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बदल गया। आपका ट्रेनिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा विद योर मेंटोर्स, विद द कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग, उसके बारे में कुछ बताइए। राइट सर, जैसे मैंने कहा कि कंटेंट इतना था कि आप इसमें एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन आप किसी भी डोमेन में चाह रहे हैं एंट्री इजीली मिल जाएगी आफ्टर गोइंग थ्रू द कंटेंट मल्टीपल टाइम्स। राइट, क्या क्या सीखा आपने? सो इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच आप एक मॉडल कैसे बनाते हैं, फाइनेंशियल मॉडल, वैल्यूएशंस करनी है उसके कौन कौन सी अप्रोचेज रहती हैं, सो हाउ टू गो थ्रू दैट इफ यू आर गोइंग टू वैल्यू अ फर्म, अ स्टार्टअप, BFSI इंडस्ट्री, आप कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे। सो एक वैलिडेशन मिला यहाँ पे कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्क्रैच से मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, वो अप्रोचेज कैसे उनको फुलफिल करते हैं। मोर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वो टेक्निकल एस्पेक्ट जितने थे आपने रियल टाइम मॉडल्स क्रिएट कर रखे हैं। राइट, आपकी फैकल्टीज भी उसमें वेल वर्स थी कि जो मॉडल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो कोर रिसर्च वो इंडस्ट्री सिखा रही है, डेटा कैसे गैदर करना है फ्रॉम वेरियस टूल्स, बीट कैप IQ, फैक्टिवा, रेफिनेटिव, ब्लूमबर्ग, वो सब इंडस्ट्री आपको सिखा देगी। बट जो बेसिक चाहिए एंट्री करने के लिए वो इधर वॉल स्ट्रीट में मिला। मोर इम्पोर्टेंटली मैं एक और जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इसमें। लाइक इनिशियली मैं बहुत सेल्फ फोकस्ड था कि मेरे को सिर्फ अपने लिए करना, अपनी फैमिली के लिए करना है। बट इधर मैं 2 मोटिव सीख के गया, एक वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, राइट, सेकंड कि सिर्फ खुद के लिए नहीं, एक इम्पैक्ट के लिए। बिकॉज मैंने आपकी जर्नी जब रीड की कि वॉल स्ट्रीट स्टार्ट किया आपने, ARC फाइनेंशियल, उस दिन भी मैं कह रहा था कि अपनी एक फर्म की आपने, गोल्डमैन, मैकेंजी, जो बड़े नाम थे वो छोड़ के आपने एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहा। राइट, मेरे को नहीं लगता ये सिर्फ आपने रेवेन्यू के लिए किया है। रेवेन्यू it's not a not profit organization, राइट, रेवेन्यू एक पार्ट है, बट जहाँ तक मैंने समझा सर कि एक इम्पैक्ट के लिए किया, और वही मैंने वहाँ से इनकलकेट किया कि इम्पैक्ट मैं क्रिएट करूँगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, एक सोसाइटी के लिए। और इसमें मैंने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया। जैसे ही मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, मैंने उधर केयर फाउंडेशन ज्वाइन किया, और जो भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनको जितना मैं सिखा पा रहा हूँ, अपना टाइम निकाल के 2 to 3 आवर्स अ डे मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी सिखाऊं। ये तो सुपर्ब है अंकित, और आपने ठीक कहा कि जैसे हम लोग गोल्डमैन सैक्स, हिमांशु जैसे मैकेंजी से हैं, तो वी वर एट द पीक ऑफ अ करियर, तो वी वर मेकिंग गुड मनी राइट देयर। राइट, तो जब ये स्टार्ट किया ARC के बाद वॉल स्ट्रीट, तो वॉल स्ट्रीट स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि जो लोग कोर फाइनेंस में आना चाहते हैं, राइट, देखो मेरे टाइम पे जब मुझे आना था तो कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं था कि जो आपको गाइड कर पाए, या मेंटोर्स भी, हम लोग मेंटोर्स के सहारे ही यहाँ तक पहुँचे थे, बट मतलब ये जो एडवाइस है या आप बोलेंगे नॉलेज है, ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। यूट्यूब चैनल्स भी बहुत लिमिटेड होते थे, कंटेंट बहुत लिमिटेड होता था। तो पर्पस यही था कि कुछ ऐसा कोर्स स्टार्ट करें जो लोगों को हेल्प करे उनके करियर में, राइट, नॉट जस्ट डिग्री बट इट शुड हेल्प इन द प्लेसमेंट ऑल्सो। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट से चलती है, राइट, बट इट्स नॉट द कोर ऑब्जेक्टिव, दैट्स नॉट द कोर ऑफ द वॉल स्ट्रीट। जितना मैंने देखा है, आई गेस मोर देन 10,000 पीपल आपने प्लेस किए हैं, राइट, एंड hundreds of thousands of hours of training, right? Yes. If I'm not wrong. Yes. So it's a positive impact on the society. People like me, others, जिनका ट्रांजिशन फेज है, पैशन है, या CFA भी, CFA, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशंस, ACCA, मल्टीपल कोर्स इधर मिल रहे हैं, राइट। तो अपने अकॉर्डिंग हमें पहचानना है कि हमें जाना क्या, कहाँ है, एंड गोल क्या है, उस एम्बिशन की तरफ जाना है, राइट। आप लोग हो इधर इजीली रीचेबल हो, एंड ये मैंने देखा, लाइक मैंने बड़े इंस्टीट्यूट से भी किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ग्रेट लेक्स, मणिपाल, बट जितना इजीली मैं इधर रीच आउट कर पा रहा था उतना आई गेस मैंने उधर नहीं महसूस किया। वो क्लोजनेस है, रीचेबल थे आप लोग सर, काफ़ी रीचेबल थे, और वो एक रिलेशनशिप है हमारा हर स्टूडेंट के साथ ना, वो मेंटरशिप वाला, तो वो डेफिनेटली है, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं अगर आपकी उनकी लाइफ में कुछ बदलाव लाना है,
राइट, आपको रियल में उनको कुछ हेल्प करना है तो आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी कि यार आप अपने कैबिन में हैं और स्टूडेंट्स को आपको रीच आउट करने के लिए 4 चैनल के को क्रॉस करना पड़े, राइट। अभिषेक सर की लाइन मेरे को अब भी याद है कि अंकित एक बार और ट्राई कर, 1 मंथ और दे, 2 मंथ दे खुद को, नहीं कुछ हो रहा मैं हूँ इधर, डोंट वरी। हाँ, आई नो कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ था, आई थिंक अगस्त में हुआ था, राइट, अगस्त 24। राइट, तो उसके बाद 1-2 महीना आपका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा था, कुछ इंटरव्यूज में आपके क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो आई रिमेम्बर कि आप अभिषेक से मिले थे, तो ही सेड कि एक बार टेक्निकली थोड़ा सा और आप इम्प्रूव कीजिए। आई वॉज इम्पेशेंट एट दैट टाइम, कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, प्लस मैंने खुद से भी काफ़ी यू नो रीच आउट किया था ऑर्गेनाइजेशंस को, नैब, ऑक्सीजन पार्टनर्स एंड व्हाट नॉट। सो लास्ट में बट हुआ सर, एंड कोर डोमेन जो मेरे को चाहिए था उसमें भी यू नो स्पेशलाइजेशन लेवरेज फाइनेंस, जो मैं सिर्फ लिखता था कि एलबीओ लेवरेज बाय आउट एंड लेवरेज फाइनेंस, वो सब अब डिटेल में सीखने को मिल रहा है तो मेरे को। अंकित, यहीं पे मैं थोड़ा सा, आप अगर डिटेल में बता पाएं कि आपका प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, जैसे ट्रेनिंग हो गया आपका, अगस्त में ट्रेनिंग हुआ था, आई थिंक अगस्त से सितंबर तक आपका ट्रेनिंग खत्म हुआ था, और प्लेसमेंट हुआ आपका नवंबर 24 में, राइट, WNS, यस सर, राइट। तो थोड़ा सा अपना वो एक्सपीरियंस जो 2-3 महीने का है कि कैसे आप प्लेसमेंट आपका हुआ और कैसे रहा। right sir, so basically what happened was at that time before my interview my resume was you know shortlisted. Himanshu sir, he asked me that Ankit डायरेक्टली आप मेरे को सेंड कीजिए, मैं आपको यू नो आफ्टर सम टाइम उस पर बताऊंगा कि क्या आपको इम्प्रूव करना है। सो ही पर्सनली असिस्टेड मी कि आपको ये चीज़ें इस पे, राइट, कि आपको ये चीज़ें इसमें नहीं करना चाहिए, इसको इस वे में आप इम्प्रूव कीजिए। सो आई रिमेंबर एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स मैंने उनको रीच आउट किया फॉर दिस थिंग ओनली, और आफ्टर दैट जब उन्होंने ओके बोला कि हाँ दिस इज़ बेस्ट, आप इसके साथ आगे बढ़िए, and then I provided that resume to the placement team, and their you know personalized group was created for my batch कि आपको opportunities इसमें आती रहेंगी, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका इंक्लिनेशन है उसमें आप अप्लाई कीजिए, and it's very transparent, and everything was there like from the CTC breakup to the profile and the organization and what they are looking for, the eligibility criterias, everything was mentioned very transparently. तो आपका फिर फाइनली WNS में एज अ सीनियर एसोसिएट इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन आपका प्लेसमेंट, राइट सर, राइट। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब अभी आपको ऑलमोस्ट वी आर इनटू फैब, तो 5 महीने हो गए, 5 मंथ्स, राइट, अराउंड 4 to 5 months, 4 to 5 months, राइट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। एक्चुअली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग में इनिशियली कोई फुल फ्लैज मॉडल्स नहीं दे रहा है, किसी को नहीं दे रहे हैं, बट जो कोर रिसर्च है, जो सभी टूल्स हैं जिन पे मैं काम करना चाह रहा था, जो फैंसी नाम मैंने सुने थे, ब्लूमबर्ग, फैक्टिवा, रेफिनेटिव, पिचबुक, डीलॉजिक, उन सब पे अभी काम करने को मिल रहा है। सो मेरे को पता है कि नेक्स्ट 1.5 year 2 year मैं काफ़ी कुछ इसमें सीख पाऊंगा, एक बेस मेरा क्रिएट हो जाएगा, एंड फ्रंट एंड के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। सो आपको भी पता है सर, डायरेक्ट एंट्री फ्रंट एंड में इतना इजी नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला कि या तो आपके पास टैग है टॉप 100 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से या IIT IIMs, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, या फिर आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है। सो दिस इज द वे जो मेरे को जर्नी में एक्सपीरियंस के थ्रू, राइट, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट। वेरी गुड। तो कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग जो अभी आपको हेल्प कर रहा है, मतलब ज़्यादा हेल्प कर रहा है? एक तो होता है कि इंटरव्यू क्लियर कराने में चलो हेल्प हुआ, वो टेक्निकल चीज़ें आपको समझ में आई जो आप प्रेजेंट कर पाए अपने इंटरव्यू में। अभी प्रैक्टिकली जब आप काम कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग? या एब्सोल्युटली, जो फ्रंट एंड में आपने काम करने के हिसाब से चीज़ें लाइक पूरी बताई गई थी हमें कि फ्रंट एंड में ये चीज़ें होती हैं, ये शेड्यूल रहता है स्टार्टिंग टू एंड, आपको कैसे रिप्रेजेंट करनी है, प्लस द टेक्निकल पार्ट जितना एक्सेल में हमें मोस्टली एक्सेल ही था, तो जितना उसमें सिखाया गया, हमने प्रैक्टिस की, वो शॉर्टकट्स, वो टाइम ऑब्वियसली बचाते हैं। एंड अभी एक वी वर डे 1 रेडी, कि डे 1 से आप रेडी हैं, आप इस जॉब के लिए, प्रोफाइल के लिए रेडी हैं। अदरवाइज आई एम श्योर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इवन 10 to 12 years ऑफ एक्सपीरियंस के मैंने पर्सन देखे थे रिटेल बैंकिंग में जो 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद आते थे, स्टिल दे नीडेड एट दैट टाइम 4 to 5 months टू सेटल डाउन,
Yeah. कोई पर्टिकुलर वैल्यूएशन मॉडल जो आपको हेल्प कर रहा है, जैसे आपने मॉडल्स बनाने सीखे फिर वैल्यूएशन सीखा, तो कोई पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ वैल्यूएशन जो आप अप्लाई कर पाए इन 4-5 महीने में? फाइनेंशियल मॉडलिंग सर, नॉट अबाउट वैल्यूएशन। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैंने किया था कुछ टाइम, वहाँ वैल्यूएशंस थी, बट इधर वैल्यूएशंस। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोर्स इस डब्ल्यूएनएस से पहले भी आपने कहीं एक स्टार्टअप में मैंने कुछ टाइम सीखने के लिए काम किया था एज अ फाइनेंस एनालिस्ट। दिस कोर्स? यस सर। अगस्त और नवंबर के बीच में? राइट सर। अच्छा, तो कितना मंथ्स काम किया आपने? अराउंड 3। तो वहाँ पे आपने मॉडल्स वैल्यूएशन वगैरह? वहाँ पर वैल्यूएशंस पे काम था, बट इतना नहीं था जितना एक बल्ज ब्रैकेट बैंक में रहता है। बट इनिशियली स्टार्टिंग में आपको सीखना है, उसके लिए काफ़ी बेहतर अप्रोच है। इधर फाइनेंशियल मॉडल्स का काफ़ी काम आ रहा है। जो आपने फाइनेंशियल मॉडल सिखाए थे, जो टीम ने हेल्प की थी, वो जो टेम्पलेट्स पे हमने काम किया था, वो अब मेरे को लाइक ऐसे ओड वन आउट फील नहीं हो रहा है, बिकॉज कि मैं फर्स्ट टाइम इस पे काम कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ें मैंने की हुई हैं ऑलरेडी। सो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड व्हेन आई एंटर्ड द प्रेमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ड्रीम है करियर का, मतलब 5 years डाउन द लाइन वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ? मैं खुद इस पे आपको बताना चाह रहा था कि 5 to 7 ईयर डाउन द लाइन चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होंगी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो मैंने अपना 5 to 6 ईयर्स किसी और डोमेन में रखे एंड देन यहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ। इनिशियली अगर मैं यहीं से स्टार्ट करता सर, तो आज मैं AVP तक आई गेस होता। बट अभी मेरा जो प्लान है CFA के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये भी अभिषेक सर की ही मोटिवेशन थी कि आफ्टर दैट गो अहेड विद समथिंग एल्स, डोंट स्टॉप। और अब रुकना तो नहीं है फॉर श्योर। तो CFA मैंने स्टार्ट कर दिया, बट 5 to 7 ईयर डाउन द लाइन फॉर श्योर फ्रंट एंड रोल। बैंक जो आपका ड्रीम बैंक है या ड्रीम कंपनी? ऑब्वियसली गोल्डमैन एंड देन मॉर्गन स्टैनले, JP मॉर्गन, ये ऑब्वियसली हर कोई करना चाहता है। बट अभी मैं सिर्फ यहाँ तक बाउंड नहीं हूँ। मैं इम्पैक्ट के साथ काम करना चाहता हूँ, सिर्फ खुद के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए। सो अपार्ट फ्रॉम केयर फाउंडेशन, मैंने अभी चाइल्ड राइट्स एंड यू, उनके साथ भी एसोसिएशन स्टार्ट किया है दिस मंथ ओनली। एंड आफ्टर दैट फॉर श्योर आई वांट टू एक्सप्लोर द ग्लोबल मार्केट्स एज वेल। सो ये जर्नी अब लाइक 5 to 7 ईयर डाउन द लाइन वी विल मीट अगेन एंड चीज़ें बदलेंगी सर फॉर श्योर। कोई एडवाइस देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आना चाहते हैं? ओके, जैसे उस टाइम पे मैं काफ़ी लिंक्डइन पे रीच आउट करता था कि जस्ट आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू डोमेन, अ न्यू चैप्टर। चीज़ें सभी थी सर, बट एक MBA का टैग या CFA जो एंट्री के लिए एक बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट आइदर यू आर CFA level 1 एटलीस्ट और MBA फाइनेंस फ्रॉम सम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। मेरे पास थे ऑप्शंस, राइट, कि MBA में कर सकता था ग्रेट लेक से भी एंड देन मणिपाल अकेडमी से भी। बट मैंने एक डिफरेंट रूट चूज़ किया कि नहीं, मैं एक डिफरेंट रूट से जाऊंगा। बट वो काफ़ी देर हो गई उसमें। बट अभी भी मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि आजकल ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के साथ ही आप CFA या वैल्यूएशन एंड मॉडलिंग कर सकते हैं। एंड आप जैसे ही ग्रेजुएट होंगे 2021 में आपको डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, राइट, नॉट बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि दिस इज़ नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी, राइट। यहाँ पर CFA, ACCA एंड देन अपना फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशंस, तो कोर स्किल्स आपको सीखनी है, टेक्निकल एस्पेक्ट आपको सीखना है, आप आइए। नो, नॉट एट ऑल सर। वो मेरे को पता है 3 to 4 मंथ्स स्ट्रगल काफ़ी रहा। एक प्लेटफॉर्म मिलता है, राइट, एंड इतना ही चाहिए, स्पून फीडिंग नहीं चाहिए, ना मेरे को ना किसी और को जो आ रहे हैं, राइट। बट एटलीस्ट जो मार्केट में आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि आपसे पैसे ले लिए जाते हैं फॉर द कोर्स एंड सो कॉल्ड गारंटीज, बट चीज़ें बिल्कुल उल्टी रहती हैं, राइट। ऐसा नहीं था इधर। सो जिसको भी कोर फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल में एक इनिशियल स्टार्ट चाहिए। डायरेक्ट प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल में आई गेस इतना इजी नहीं रहता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट कोर रिसर्च, कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कोर फाइनेंस, फॉर श्योर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एंड CFA एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल। हाँ, इनफैक्ट मतलब 4-5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आप PE फंड्स में, वेंचर कैपिटल फंड में जा सकते हैं, राइट। बट यस, एट द स्टार्ट विद थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि अगर आपको एज ए फ्रेशर डायरेक्ट PE फंड्स में एंट्री मिले, क्योंकि नॉर्मली दीज पीपल ईदर हायर फ्रॉम द बिग
top B schools or they hire experienced people, right? अंकित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बिल्कुल दिल से बात किया आपने, मतलब बिल्कुल कैंडिड फीडबैक एंड एक्सपीरियंस यू शेयर्ड विद अस. इनफैक्ट ये जर्नी मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि कोई स्टूडेंट जो हम्बल बैकग्राउंड से आता है, राइट, नॉट सो कॉल्ड फ्रॉम द टॉप बी स्कूल्स, एंड जिसका पैशन है लाइफ में कुछ करने का और अपने ड्रीम को फॉलो करने का, तो वो कैसे अपने पैशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं. तो काफ़ी सारे लोगों को हेल्प होगा. और स्पेशली जो आपका जैसे आपने बोला आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, राइट, तो वो जो गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला आपका एटीट्यूड है, तो दैट डेफिनेटली इम्प्रेस्ड मी कि खुद के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना. वो इम्पैक्ट सर फॉर श्योर इधर से मेरे को मिला है, नॉट ओनली द टेक्निकल एस्पेक्ट, बट ये मेरे को लगा कि जो मैकेंजी गोल्डमैन जो ब्रांड है, टैग है, जो हर कोई जाना चाहता है, वो लाइक करियर का ये पाथ था कि आप इंट्रोडक्शन ग्रोथ, आई डोंट नो किस फेज़ में थे उस टाइम, वो फेज़ अपना छोड़ के आपने बिल्कुल स्टार्ट किया, एंड फॉर श्योर चीज़ें बदल रही हैं सबके लिए. इनफैक्ट मैंने एक अपना भी जर्नी शेयर किया है, वन ऑफ माय पॉडकास्ट इज देयर ऑन यूट्यूब. उसका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे मेरे जैसा, आई वाज आल्सो वेरी एवरेज स्टूडेंट, राइट, टिल 12th स्टैंडर्ड, और कैसे मैंने अपना ड्रीम फॉलो किया. अल्टीमेटली आई वर्क फॉर द कंपनी वेयर यू वांट टू वर्क फॉर, गोल्डमैन सैक्स में. तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ कि हम डेफिनेटली दोबारा मिलेंगे व्हेन यू वुड विन द गोल्डमैन सैक्स एज अ फ्रंट एंड बैंकर, राइट, और आई एम श्योर यू कैन टू डू दैट, you're going to achieve that. Sure, so thank you so much Ankit for sharing your insight. Thank you so much for inviting All the me. best. Thank you.